Today we are going to start a new chapter for 12th class, chapter 3rd, matrix. First of all, we have to know that what is a matrix. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions in rows and columns. We can say that a rectangular arrangement in the form of rows or columns is known as matrix. We can take an example of matrix. Let us suppose A is a matrix. A is equal to A, B, C, D, E, F. These horizontal lines are known as rows. This is row 1, this is row 2, and these vertical lines are known as columns. This is column 1, column 2, column 3. From here we can say that the horizontal lines are known as rows and the vertical lines are known as columns of the matrix. मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें कि हम नंबर्स को, डिजिट्स को या फंक्शंस को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी सी फर्स्ट रो, डी एफ सेकंड रो एंड ए डी कॉलम फर्स्ट, दिस इज कॉलम सेकंड, दिस इज कॉलम थर्ड. राइट, नाउ लेट अस नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. So it is always represented as m into n, where m is the number of rows in the matrix and n is the number of column in the given matrix. It is the order of a matrix having m rows and n columns. It is always read as m by n or m is to n. Right? Now let us know about the types of matrices. There are different type of matrices. First one is row matrix. A matrix having only one row and any number of columns is called row matrix. It means row matrix में केवल एक रो होगी और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. Let us take an example about this. A is a matrix which is a row matrix having a single row 2 4 5. Its order is 1:3. Let us take another example. B is a matrix. Its order is 1:2 because it has one row and two columns. Right? Now second one is
Second matrix is column matrix. A matrix having one column and any number of rows is called a column matrix. मीन्स वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा और रोज कितनी भी हो सकती हैं उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. जैसा कि अभी हमने देखा, रोज मैट्रिक में केवल एक रो होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. उसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होगी, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं. एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे कि मैट्रिक्स ए है कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3. इट हैज 3 rows and 1 column. Therefore, its order is 3:1. We can take another example. Let's suppose we have a B matrix. 5, 6 are the elements of this matrix, and it has 2 rows but single column. That is, order is 2:1. Right. Next type of matrix is square matrix. Square means length and breadth the same. That is a matrix which have same number of rows and columns. That is having equal number of rows and columns is called a square matrix. Right? Examples of square matrix are, let us suppose A is any matrix 2 6 minus 3 4. Order is 2:2. Let us take another example. B is any matrix 3 2 1 4 7 8 0 3 5. Order is 3:3 because it has 3 rows and 3 columns. ना स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए में हम देख सकते हैं, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो देर इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं 1 2 3 देयर आर 3 रोज, 1 2 3 देयर आर 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर इज 3:3. तो बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है. तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है. ना नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स. Diagonal matrix, a square matrix is called a diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonal are 0. Let us take example of diagonal matrix 3 0 0 5. Next example is 1 0 0 0 3 0 0 0 8. We can see that this is the diagonal of a matrix. These two are the diagonals of these two matrices, right? If
the elements except the diagonal elements are 0, then the matrix is said to be diagonal matrix. मतलब जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे कि आप सब देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में 3 and 5 ये दोनों डायगोनल के एलिमेंट्स हैं. इसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं. ऐसा सेकंड मैट्रिक्स में देख सकते हैं हम 1, 3 and 8 ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं. तो वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 0 ना होकर के दूसरा कोई नंबर होता है, बाकी दूसरे एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स. इट इज स्केलर मैट्रिक्स. फिफ्थ वन इज स्केलर मैट्रिक्स. Scalar matrix is a diagonal matrix having all its diagonal elements are equal, or we can say same, means all diagonal elements are same, is called a scalar matrix. We can take example of scalar matrices like 3 0 0 3. Here we can see that the diagonal is 3 3, that is these two diagonal elements are same. It is a matrix of order 2:2. Another matrix we can take like 7 0 0 0 7 0 0 0 7. We can see that the diagonal elements are 7 only, right? 7 7 7. And the order of the matrix is 3:3. The next one is identity matrix. It is a square matrix. A square matrix whose diagonal elements are 1 and all other elements are 0. Is called an identity matrix, right? Or we can say it is a unity matrix. Let us take example 1 0 0 1. It is of order 2:2. Next one is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. It is of order 3:3. We can represent identity matrix by, it is represented by letter I, identity matrix, right? The next one is last type of matrix is zero matrix. A matrix having all its elements as 0, means जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं उसी को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. राइट? एग्जाम्पल इज 0 0 0 0. तो अभी तक हमने देखा मैट्रिक्स किसे कहते हैं. क्विक रिव्यू लेते हैं एक बार और उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें कि हम एलिमेंट्स को, नंबर्स को, डिजिट्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं. राइट? इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको रोज कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको कॉलम्स कहते हैं. फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. जितने रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे.
लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको m इंटू एन के फॉर्म में लिखना है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पढ़ा जाएगा m बाय n और m इज टू n, ये इसको पढ़ने का तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, दैट इज जिसमें कि केवल एक रो होता है और कॉलम कितनी भी हो सकती हैं, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल कॉलम होगी, रो कितने भी हों, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रो और 2 ही कॉलम है, नेक्स्ट वन में 3 रो और 3 ही कॉलम है, राइट। इसके बाद हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में यहाँ पे 3 0 0 5 मीन्स डायगोनल में 3 5 है, बाकी दोनों एलिमेंट 0 हैं। इसी प्रकार से सेकंड मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं 1 0 0 0 3 0 0 0 8। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायगोनल में 1 3 8 है, बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं, राइट। इसके बाद हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें कि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिमिलर। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में 3 0 0 3, तो हम देख पा रहे हैं कि 3 3 ये डायगोनल के एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर 2 2 है मैट्रिक्स का। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 7 0 0 0 7 0 0 0 7। यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स में 7 7 7 है, लेकिन बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि एक टाइप की स्केलर और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल भी कह सकते हैं इसको, जिसमें कि डायगोनल के एलिमेंट्स में केवल 1 और 1 1 होता है, राइट। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 1 0 0 1, तो ये होगा हमारा 2 2 का मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम देख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से भी लिखते हैं। अगर कहीं पे लिखा है आई 2 2 मीन्स वो 2 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई 3 3 लिखा है या आई 3 लिखा है, केवल आई 3, कहीं पे आई 2 लिखा है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 2 ऑर्डर, राइट। और कहीं पे आई 3 लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा मैट्रिक्स में इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 3। लास्ट वन इज जीरो मैट्रिक्स। इट इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज 0, राइट। जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मैट्रिसेस देख लिया। मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और राइटिंग ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स को, जैसे कि अभी हमने अब देखा था कि एक मैट्रिक्स के अंदर उसमें रोज हैं और कॉलम्स है, तो रो के एलिमेंट को हम जैसे लिखेंगे तो A11 A12 A13 कॉल, यहाँ पे सेकंड रो आएगा तो A21 हो जाएगा, मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और वी कैन से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A22 A23। इसी प्रकार से थर्ड रो में A31 A32 और लास्ट वन इज A33। यहाँ पे हम देख सकते हैं A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम, वी कैन से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रो का कौन सा एलिमेंट है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लें, एक मैट्रिक्स ले लिया हमने बी मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 -4, राइट। एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 3 3 ऑर्डर है इसका। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है कि A23 एलिमेंट कौन सा है, तो हम देख सकते हैं 2 मीन्स सेकंड रो, 3 मीन्स थर्ड एलिमेंट, तो सेकंड रो ये है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 7, तो A23 इज 7, राइट। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछ रहा है A31 बताइए, तो A31 एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 3 मीन्स थर्ड रो, 1 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट इज 8, राइट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो जितने भी ये लिखे हुए हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A11 A12 A1। तो जब हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका प्रोडक्ट आता है वही हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन्स जितने रो हैं और कॉलम हैं उनको मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो आपका
नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। इसके बाद हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices A and B are said to be equal matrices if they are of same order. First of all, order should be same, and if all the corresponding entries, that is elements or elements, are equal, or we can say same. सभी एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो, और उनका ऑर्डर सेम हो, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है इक्वल मैट्रिसेस. दिस इज इक्वल. बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन सोल्व सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेट अस टेक एन एग्जांपल क्वेश्चन. इफ 3x 2 x minus y 4 is equal to 6z 4 5, then find x y and z. तो हमें यहाँ पे दिया गया है 3x 2 x minus y 4 is equal to 6 z 4 5. Means these two matrices are equal to each other. Then we have to find x y z. So here in solution we can write it again. 3x 2 x minus y 4 is equal to 6z 4 5, right? By equality of matrices, we know that the corresponding elements are equal. That is 3x is equal to 6, this 2 is equal to z, and x minus y is equal to 4. Now this element is equal to this is equal to this, means corresponding entries or the elements are equal. तो यहां से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3, that is 2. Now z is equal to 2. Now as x is equal to 2, we can put the value of x here and can find the value of y. Then y will be equal to minus y is equal to 4 minus 2, and y is equal to minus 2, right? So this is as x is equal to 2, z is equal to 2, and y is equal to minus